अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, अल-महदी टीवी के प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम नंबर 33 के साथ आपका मेज़बान सखावत हुसैन सदरालवी हाजिर खिदमत है। अल-महदी टीवी के तमाम नाज़रीन व नाज़रात को सबसे पहले मैं मसनून तरीक़े पे चलते हुए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। आज का ये प्रोग्राम आमाल ज़िलहज के बारे में है। आज हम इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स भी लेंगे। हमारा नंबर आप नोट कर लें, 718-675-6987। अल-महदी टीवी के आज के इस प्रोग्राम में हम माह ज़िलहज्जा पर गुफ्तगू करेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि ज़ुल्हज, ज़िलहज, ज़ुल्हज्जा, ज़िलहज्जा ये माह मुबारक के ज़िलहज के नाम है। इस महीने को मुहर्रम महीनों में से आखिरी माह साल कहा जाता है। इस्लामी कैलेंडर के एतबार से ज़िलहज का महीना आखिरी महीना है और उन 4 महीनों में से है जिनको हराम महीने कहा जाता है, यानी ज़माने जाहिलियत में भी जंग मना और हराम शुमार होती थी। रजब में, ज़ीक़ाअद में, हज में और ज़िलहज में और मुहर्रम में अरब बद्दू भी जंग नहीं करते थे। ज़ुल्हज का महीना इस एतबार से ज़ुल्हज कहलाता है कि इसमें हज होता है और ये हज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से होता चला आया है। हज का लुग़वी माना इरादा है। मनासिक की अदायगी को इस्तिलाह में हज कहते हैं, जिसके उम्रे मुफरदा या उम्रे तमत्तु या हज तमत्तु वगैरह के तमाम अराकीन को जमा किया जाए तो कुल 18 बनते हैं। उम्र तमत्तु और हज तमत्तु के कुल 18 अरकान हैं। एक कॉल ले लेते हैं। आप भी कॉल करके आज के प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, आपकी आवाज़ कट रही है। अगर आप हमें वाच कर रहे हैं तो प्लीज़ दोबारा ज़हमत कर लें या कोशिश करें एक दफ़ा फिर बात करें। दोबारा कॉल फरमा लें, आपकी आवाज़ बिल्कुल हमें समझ नहीं आ रही। दोबारा कॉल कर लीजिए। हमारे साथ एक कॉलर थे, पहले कॉलर, मगर आवाज़ क्लियर नहीं थी। जो लोग वाच कर रहे हैं वो 718-675-6987 पे लाइव कॉल करके आज आमाल ज़िलहज, अहमियत माह ज़िलहज के बारे में वो सवाल कर सकते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं। ज़िलहज का महीना वो महीना है जिसमें ज़माने जाहिलियत में भी अरब
حج کرتے تھے. البتہ زمانے جاہلیت کا حج مور بزنس تھا, لیس عبادت تھا. مارکیٹیں لگتی تھیں, منڈیاں لگتی تھیں, بازار اکاز لگتا تھا. پورا سال عرب عورتیں مرد انویسٹمنٹ کرتے تھے, کپڑے بنائے جاتے تھے, سویٹرز بنی جاتی تھی, جرسیاں تیار کی جاتی تھیں, اوور کوٹ بنائے جاتے تھے, کمبل بنائے جاتے تھے, چادریں بنی جاتی تھیں, کھالوں کے کپڑے بنائے جاتے تھے, کھالوں کی زینیں تیار کی جاتی تھی, ڈھالیں تیار ہوتی تھی, آلات اور ہتھیار تیار ہوتے تھے, اور ان ایام میں آ کر مکے میں فروخت ہوتے تھے. حج کا مہینہ اس لیے ذو الحج کہلاتا ہے. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. جی میں بات کر رہا ہوں, فرمائیے. مجھے یہ بات کرنی ہے مولانا صاحب کہ میرے کچھ جاب کی پرابلم ہو رہی ہے, تو مجھے ذرا کچھ ایسا بتا دیں کہ میرا جو آنر ہے, جو میرا سپروائزر ہے, وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے. بہن ذرا دوبارہ کہیے, سمجھ نہیں آ رہی, پتہ نہیں فون میں کوئی خرابی ہے, دوبارہ کہیے گا. میں یہ کہتی ہوں کہ اپنے جاب کے سلسلے میں کچھ پوچھنا ہے. میرے جاب کے جو سپروائزر ہے وہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں, کام خراب کرتے ہو, یہ کرتے ہو, مجھے ڈر لگتا ہے کہ نکال نہ دے وہ. یہ بات بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہی, پتہ نہیں ہمارے فون میں خرابی ہے یا آپ کے ہاں. بالکل بات سمجھ نہیں آ رہی بہن, یا تو دوبارہ زحمت فرما لیں. ہاں میں دوبارہ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. یہ دوسری کالر ایک سسٹر تھی, ان کی بات بھی ہمیں بالکل سمجھ نہیں آئی. آپ واچ کر رہے ہیں المہدی ٹی وی کا پروگرام صراط مستقیم نمبر 33. اس پروگرام میں ہم اوکیجنل ڈیٹس کے بارے میں, مہینوں کے بارے میں, شخصیتوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, اور آج ہم ذی الحج کے مہینے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ذی الحج کو ذی الحج اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حج کا مہینہ ہے, حج کیا جاتا ہے. اس میں کچھ اہم جو ڈیٹس ہیں وہ آپ نوٹ فرما لیں. پہلی جو ڈیٹ ہے اس مہینے کی, یکم ذو الحج, یہ عقد علی و بطول کا دن ہے. حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کا عقد حضور اکرم نے یکم ذی الحج کو پڑھا تھا. آپ اپنے بچوں کے اگر عقد کرنا چاہیں تو اس مقدس ڈیٹ کو آپ نوٹ کر لیں. 3 ذی الحج کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کی ایک روایت ہے. اسی طریقے سے 5 ذی الحج کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے. 5 ذی الحج کو حضور حج کرنے کے لیے مکہ پہنچے تھے. آج بھی 5 ذی الحج تک لوگ مکہ پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پہنچتے رہتے ہیں. 7 ذو الحج کو امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں پر فتح حاصل کی تھی. 8 ذی الحج کو یوم ترویہ ہے. اس دن حاجیوں کو پانی پلایا جاتا ہے, کعبے کو غسل دیا جاتا ہے. 9 ذی الحج کو حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کا دن ہے, جنہیں کوفہ میں بے دردی سے مار دیا گیا تھا. 10 ذی الحج کو عید الضحیٰ ہے, اور ان 10 راتوں کی قسم سورۃ الفجر میں اللہ نے کھائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والفجر ولیال عشر والشفع والوتر.
13 का दिन था, 13 का दिन गुजार के जो 14वीं रात होती है, हुजूर पाक की उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हुए थे। 18 को गदीर का दिन है, और भी इसकी सिग्निफिकेंसेस हैं, अर्ज करूंगा मैं इंशाअल्लाह। 18 जिलहज को इमाम अली अलैहिस्सलाम को मैदान गदीर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,30,000 के असहाब के मजमे में ज़ाहिरी तौर पे मौला मुकर्रर किया, और आपने फरमाया था मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला। यही दिन मोमिनीन के दरमियान मुआखात का दिन भी है कि वो एक दूसरे को भाई बनाते हैं। 19 को रुखसती है अली व बतूल अलैहिस्सलाम की, 22 को शहादत फर्जंदान मुस्लिम है, 21 को ही सूरह तौबा नाजिल हुई थी 21 को, और इसी दिन मौला अली शेर खुदा ने अंगूठी दी थी साहिल को, जिसके एवज अल्लाह की ज़ात ने आपको मनसब विलायत अता फरमाया। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। ये आयत नाजिल हुई थी 21 के दिन। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, इस महीने की आखिरी तारीख में सूरह मुबारक है दहर नाजिल हुआ था। इसमें एक ज़रूरी अम्र जो आज बयान करना है वो ये है कि आमाल ज़िलहज के आमाल में कुछ रोज़े हैं, जैसे सुन्नत रसूल थी, पहले 9 दिन हुजूर रोज़ा रखते थे। बल्कि पहले रोज़े के बारे में तो इस दर्जा बयान किया गया और इस दर्जा सवाब लिखा गया है। अगरचे आज हम ये प्रोग्राम ताख़ीर से कर रहे हैं, आज 5 ज़िलहज है, हमें ये प्रोग्राम चांद रात में करना चाहिए था, मगर कुछ मजबूरियों की वजह से उस वक्त हम ये प्रोग्राम कर नहीं सके। पहले रोज़े के बारे में यहाँ तक लिखा गया है कि एक रोज़े के एवज अल्लाह ताला 80 महीनों के रोज़ों का सवाब दर्ज फरमाता है। अगर कोई शख्स पहले 9 रोज़े रख ले तो उसे तमाम दुनिया के नेक लोगों का सवाब मिलेगा। पहले रोज़े के एवज में यहाँ तक लिखा गया कि 100 गुलाम आज़ाद करने का सवाब है, और 70 ऊँटों के सदका करने का सवाब है। और अगर कोई शख्स 100 घोड़े राह खुदा में जिहाद के लिए भेजे तो उस दर्जे का सवाब पहले रोज़े के रखने की वजह से होगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पहले 10 दिन हैं, यकम से 10 ज़िलहज, ये जिहाद राह खुदा से भी अफजल इबादत के दिन है। तरविया का दिन 8 ज़िलहज के बारे में फरमाया कि ऐसे ही है जैसे कोई शख्स अगर यौम तरविया की इबादत करे तो उसने 1000 गुलाम राह खुदा में आज़ाद किए और 1000 ऊंट नहर किए और 1000 घोड़े राह खुदा में जिहाद के लिए भेजे। यौम अरफा का दिन अगर कोई इबादत करे, जो इस साल सैटरडे को पड़ रहा है, और जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं
वो नोट कर लें कि इस साल, क्योंकि मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, लिहाजा अलमहदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में 12 बजे से लेकर 5 बजे तक इंशाअल्लाह आमाल कराए जाएंगे। यौम अरफा के दिन के आमाल के बारे में लिखा है कि 2000 गुलाम आज़ाद करने के बराबर एक दिन की इबादत है, और यूं समझे 2000 ऊंट सदका किए और 2000 घोड़े राह खुदा में भेजे। अल्लाह ताला इसके एवज 60 सालों के गुनाह माफ कर देता है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की रिवायत है, जिनका यौम शहादत परसों यानी 7 ज़िलहज को है, और इंशाअल्लाह 7 ज़िलहज को इमाम अल-खुई इस्लामिक सेंटर न्यूयॉर्क में 8 बजे मेरा खिताब भी होगा। इस तरीके से 8 ज़िलहज को जुमा के दिन शाह नजफ ब्रेंटवुड लॉन्ग आइलैंड में खिताब होगा, और सैटरडे को इंशाअल्लाह यहीं पर 12 से 5 आमाल अलमहदी सेंटर में, और 5 बजे से लेकर मगरिब तक मजलिस सफ़ीर हुसैन हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम होगी। और बाकी जहाँ जहाँ मसाजिद मराकज़ में दीगर उलमाए किराम खिताब फरमाएंगे, तमाम भाई बहनों से गुजारिश है कि वो इन इम्पोर्टेंट डेट्स का ख्याल रखें। ज़ुल्हज के अमाल में अगर आप हमें कॉल भी करना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 718-675-6987 पर। सलामुन अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, रमीज बात कर रहा हूँ। जी, कैसे हैं ना? बस बिल्कुल ठीक। मेरा एक सवाल था कि ज़िलहज के महीने में कितने रोजे वाजिब हैं? बहुत शुक्रिया, रमीज़ ने हमें कॉल की है और पूछ रहे हैं कि ज़िलहज के महीने में कितने रोज़ों का हुक्म है। तो अभी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, पहले जो 9 रोज़े हैं ये सुन्नत है, और उसके बाद साल के 4 रोज़ों में एक रोज़ा है 18 ज़िलहज का, यौम गदीर का। इसी तरीके से यौम मुबाहला का रोज़ा भी है। ये सब रोज़े सुन्नत हैं, और इन रोज़ों का बड़ा अजर व सवाब है मग़फ़िरत गुनाह के लिए। गुनाह इससे माफ़ होते हैं, रिज़्क़ व माल में वुसअत होती है, इंसान में खुलूस और परहेज़गारी तक़वा पैदा होता है। बहुत शुक्रिया रमीज़, आपने हमें कॉल की और हमसे सवाल किया, जज़ाकुमुल्लाह। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 675-6987 एरिया कोड 718 पर। अस्सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम। अगर साहब, मैं न्यू जर्सी से बात कर रहा हूँ। जी, तो मेरा सवाल है कि माह ज़िलहज की पहली 10 रातों में जो 2 रकात नमाज पढ़ने का हुक्म है, जी, तो उसमें जो सूरह आराफ की आयत नंबर 142 पढ़ने का हुक्म है, वो अगर याद ना हो तो उसके बारे में क्या हुक्म है कि वो देख के पढ़ सकता है, या उसके बारे में थोड़ी वजाहत करें। बहुत शुक्रिया। कौन फरमा रहे हैं आप? असद अब्बास बात कर रहा हूँ। असद अब्बास ने हमें कॉल की है न्यू जर्सी से। अभी मैं अर्ज़ करता हूँ, बहुत अच्छा सवाल किया है। पहले सुन लीजिए कि पहली 10 रातों में मगरिब और इशा के दरमियान 2 रकत नमाज पढ़नी सुन्नत है। हर एक रकत में एक मरतबा सूरह हमद, एक मरतबा सूरह इखलास, और ये आयत व इज़ वअदना मूसा सलासीन लैलतन व अतममनाहा बिअश्रिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही अर्बईन लैलतन व क़ाल मूसा लिअख़ी हारून अख़्लुफ़नी व अस्लिह वला तत्तबि' सबीलल मुफ़सिदीन। अगर किसी को ये आयत याद ना हो तो असद अब्बास का सवाल ये है कि आया देख के पढ़ सकते हैं? तो जवाब ये है कि देख के पढ़ने में कोई कबाहत नहीं है। बहुत शुक्रिया असद अब्बास, बहुत अच्छा सवाल किया। एक और कॉल ले लेते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमजा बात कर रहा हूँ। हमजा, कैसे खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे हैं आप? जी, दुआ है, दुआ। जी बस अभी वो इकट्ठे ही देख रहे थे, तो रमीज और मैं।
अच्छा तो मैं कह रहा था कि मुनासिब वो आप समझे तो कोई रवायत जहाज के हवाले से हजरत इस्माइल का कुछ किस्सा इस तरह अगर आप बयान कर दें। बहुत शुक्रिया, अगर बीच में बहुत शुक्रिया। अभी बयान करते हैं, आप वाच करते रहे। अभी मैं अर्ज़ करता हूँ, हमज़ा ने हमें कॉल की है और उन्होंने फरमाइश की है कि ज़रा ईद क़ुरबान के बारे में हज़रत इस्माइल और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो क़ुरबानी थी उसकी ज़रा स्टोरी बता दें। तो असल हुआ ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आलम रोया में ख्वाब में देखा कि इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बह का फंजुर माज़ा तरा, कि बेटा मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, अपनी राय बतलाओ। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा या अबत इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। एक कॉल और ले लेते हैं, फिर हमज़ा का जवाब देंगे। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब इकबाल अर्ज कर रहा हूँ। जी सर। बहुत अच्छा जा रहा है जी बहुत ही मालूमाती और बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम है जिसकी कम है। और इसके अलावा एक बात है कि सब यौम अरफा क्यों कहते हैं और इरफाक को इरफाक क्यों कहते हैं, प्लीज मेहरबानी कीजिए। दोबारा फरमाइएगा इकबाल साहब। इकबाल साहब हमें कॉल कर रहे हैं टेक्सास से, फरमाइएगा दोबारा। मौलाना साहब मेरा ये सवाल है कि यौम अरफा को हाँ, यौम अरफा क्यों कहते हैं, ठीक है, क्यों कहते हैं? बहुत शुक्रिया। मैं भी अर्ज़ करता हूँ, वॉच करते रहे, मैं भी अर्ज़ कर रहा हूँ। इकबाल साहब ने हमें कॉल की है और हमसे सवाल किया है कि यौम अरफा को यौम अरफा क्यों कहते हैं। तो अरफा पहचानने से है। यौम अरफा को अरफा इसलिए कहते हैं कि यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस मैदान में और इस दिन अरफा के मैदान में और अरफात के दिन, अरफा के दिन यानी 9 ज़िलहज को अपनी ज़ौजा हव्वा अलैहिस्सलाम को पहचाना था। और वो जबल रहमत आज भी मौजूद है। अल्लाह आप सबको हज पे ले जाए, उम्रे पे ले जाए, आप वो मकाम देखें जाकर। आज भी मीटिंग पॉइंट जो आदम और हव्वा का है वो आज भी वहाँ पर मौजूद है। अरफा को अरफा इसलिए कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हमारी जद्दा हव्वा अलैहिस्सलाम को पहचाना था। और अरफा को अरफा इसलिए भी कहते हैं, इस मैदान अरफात ने हज़रात मोहम्मद और आले मोहम्मद की विलायत व मोहब्बत की मारिफत सबसे पहले हासिल की थी। और यही मैदान महशर भी होगा, यहीं पर कचहरी लगेगी। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, क़ब्ल इसके कि हमज़ा के सवाल का जवाब दिया जाए, एक अमल और सुन लें। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा इब्न मरियम के लिए 5 दुआएं ले आए थे। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम सिस्टर। आपको मुबारक हो कि आप वहाँ पहुँच गए हैं अल्लाह के घर में। इस दफ़ा हम वहाँ जा नहीं सके, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी है तो अगले साल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैंने बात ये करनी कि ये अरफात के मैदान में जब शिया सुन्नी इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं, फिर उनका वो इसरा क्यों करते हैं, उनका इतराफ क्यों होता है ऐसे? हेलो हाँ सिस्टर, कौन बोल रही हैं? मैं सरबत बात कर रही हूँ यहाँ से, वर्जीनिया से। बहुत शुक्रिया बहन सरवत, बड़ा अच्छा सवाल है बहन सरवत का कि शिया सुन्नी जब मैदान अरफात में इकट्ठी नमाज पढ़ते हैं तो यहाँ इख्तिलाफ क्यों करते हैं। तो बहन सरवत उनको बताना चाहिए जो इख्तिलाफ करते हैं। हम तो शिया सुन्नी इत्तेहाद के कायल हैं, कायल थे, कायल रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जो फसाद फैलाते हैं या इख्तिलाफ फैलाते हैं। बड़ा अच्छा, इतने दिन हो गया आ नहीं रहा ना, तो अब हेलो जी जी हाँ जी, तो आपका प्रोग्राम नहीं आ रहा लाइव ना, तो जब आप होते हैं तो टीवी में बड़ी रौनक होती है, बड़ा अच्छा है। बड़ी मेहरबानी, असल में ज़रा मसरूफ़ थे हम इस दफ़ा, ज़रा कुछ परेशानी थी, इसलिए इंशाल्लाह अब आपकी खिदमत में हाज़िरी होती रहेगी। बहुत शुक्रिया बहन, अपना ख्याल रखिएगा, आपके लिए हम दुआ गो है। बहुत शुक्रिया सरवत बहन, आपने कॉल फरमाई। माशाल्लाह नाज़रीन नाज़रात, आप इंटरेस्ट देख लें, कितने दिनों के बाद मैं हाज़िर हुआ हूँ और माशाल्लाह लोग काफ़ी इस प्रोग्राम को मिस करते हैं। ये जो इंशाअल्लाह प्रोग्राम मगरिब के बाद का है, जारी रहेगा अल्लाह के हुक्म से। और हम सब से इल्तिमास से दुआ करते हैं। 5
ऐसी दुआएं थीं जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ले आए थे। वो 5 मैंने अपनी किताब तोहफ़े दरवेश में लिखी है। ज़िलहज के महीने में पहले 10 दिनों में इन दुआओं को पढ़ने का बड़ा अजर व सवाब है, बल्कि बाद रिवायतों में तो मैंने देखा है कि 100 मरतबा इन दुआओं को पढ़ने का हुक्म वारिद हुआ है। अगर कोई शख्स 1 मरतबा इनको पढ़ ले तो वो यूं समझे कि उसने 12 मरतबा तौरात पढ़ी है, 12 मरतबा ही इंजील पढ़ी है। ये 5 दुआएं जो 5 शहादतें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम। एक सवाल है मेरा सर। जी जनाब। मेरा सवाल ये मौलाना साहब से पूछिए कि जहाद को कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। भाई पूछ रहे हैं कि जिहाद को, जिहाद का है ना आपने? जी मैंने जहाद को कहा। जिहाद जहद से है। जहद, जहद कहते हैं कोशिश को, स्ट्रगल को। जिहाद को इसलिए जिहाद कहते हैं कि वो स्ट्रगल होती है जब नबी या मासूम इमाम मौजूद हो, या नबी और इमाम का ख़ास नाइब ऐलान फरमाए नबी या इमाम के हुक्म पर, तो वो जिहाद होता है। और वो डिसबिलीवर्स के ख़िलाफ़ होता है, मुनाफिकों के ख़िलाफ़ भी हो सकता है। अलबत्ता आजकल के दौर में जिहाद का स्टेटस मौजूद नहीं, बल्कि आजकल इसको दिफा कहा जाएगा, इसलिए कि नबी इमाम ज़ाहिरी हुक्म देने के लिए मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया। आजकल का जिहाद, जिहाद बिन नफ्स करना चाहिए, जिहाद बिल लिसान करना चाहिए, तबलीग करके जिहाद करना चाहिए, अपनी औलाद बचा के जिहाद करना चाहिए, ख़ुद को गुनाहों से बचा के जिहाद करना चाहिए। औरतों का जिहाद मर्दों की खिदमत को कहा गया है। अपने ईगो को मार के जिहाद करना चाहिए। मेहराब जाए हर्ब में शैतान को शिकस्त देकर जिहाद करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको जिहाद बिन नफ्स और जिहाद अकबर की तौफीक खैर मरहमत फरमाए। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, हमारा प्रोग्राम जारी व सारी है सिरात मुस्तकीम नंबर 33, जिसमें आज हम ज़िल हज के बारे में आपकी खिदमत में मारूज़ात पेश कर रहे हैं। अभी तक हम शब अरफा, यौम अरफा के आमाल तक नहीं पहुँचे। 8 ज़िल हज के रोज़े का सवाब भी सुन लीजिए कि 60 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है अगर कोई शख्स 8 ज़िल हज को रोज़ा रख ले। यानी कि इस दफ़ा 1435 हिजरी में जो फ्राइडे का दिन आ रहा है, फ्राइडे का दिन, फ्राइडे के दिन अगर कोई शख्स रोज़ा रखे तो उसका सवाब 60 साल के गुनाहों के कफ़ारे के बराबर है। 60 साल के गुनाह उसके माफ़ हो जाएंगे। कबल इसके कि हम अमाल अरफा का जिक्र करें, जिनमें गुस्ल है, 4 रकत नमाज है, हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 50 मरतबा सूरतुल इखलास का पढ़ना है। दुआए इमाम हुसैन है, दुआए इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और इसमें काफ़ी इबादतें और रियाजतें हैं। अस्माए हुस्ना की क़राअत है इसमें। एक कॉल और ले लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह प्रोग्राम जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं हदिया सारा बोल रही हूँ। जी। और मेरा ये सवाल है कि जो हाजी सऊदी अरेबिया में कुर्बानी करते हैं, क्या गरीबों को ये गोश्त मिलता है? शाबाश। हदिया ज़ारा कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। हदिया ज़ारा ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो कुर्बानी हुज्जाज मिना में करते हैं,
मिना के मैदान में, उसमें ज़ाहिर है गरीबों का एक हिस्सा है। आया वो गरीबों को मिलता है? तो इसका जवाब ये है कि गरीबों को तो दरकिनार, अमीरों को भी नहीं मिलता। ज़ाहिर है वहाँ पर कोई इस गोश्त को हासिल नहीं कर सकता। अलबत्ता सऊदी हुकूमत ने अफ़गानिस्तान वगैरह, इराक़ वगैरह कई ममालिक में गरीब लोगों को भिजवाने का, अफ्रीका वगैरह में एहतमाम कर रखा है। बहुत शुक्रिया हादी हज़ारा, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। बहुत अच्छा सवाल किया हादी हज़ारा ने, और वो इस सिलसिले में वरीड है कि आया वो गोश्त गरीबों को मिलता है या नहीं मिलता। बहरहाल आप हज़रात व ख़वातीन जो हज पे नहीं जा सके, उनके लिए एक सब्स्टिट्यूट बताया गया, वो अरफा के दिन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अगर आप दूर रहते हैं तो 12 बजे आप almaditv.com ऑन कर लें। 12 से लेकर इंशाअल्लाह 5 बजे तक, बल्कि मगरिब तक, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 8 घंटे हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेंगी। बीच में ज़रा सा वक्फा होगा आधे घंटे का नमाज का, तो आप ज़रूर अटेंड करें ताकि वो सारे अमाल कराए जाएं। जो हाजी काबा नहीं पहुंच सके उनको अल्लाह ताला हज से भी ज़्यादा सवाब देगा अगर वो इमाम हुसैन की ज़ियारत अरफा के दिन पढ़े। अस्सलामु अलैकुम। हेलो जी सलाम। जी अलैकुम सलाम। जी भाई साहब, मुझे आपसे सवाल करना है, मगर मैं मतलब पर्सनली मुझे कुछ मालूमात करना, तो आप किस नंबर पे मैं बात कर सकती हूँ आपसे? जो भाई बहन पर्सनली मुझसे बात करना चाहें, अभी कंट्रोल रूम वाले मेरा नंबर टाइप कर देंगे। जी जी। आप मेरे ज़ाती सेल नंबर पर लिख लें, अच्छा, 856 266। बहुत जरूरी करना है हाँ बात तो बहन लिख लें ना, आप लिख लें, और भाई बहन भी लिख लें। मेरा ज़ाती नंबर है 856 266 बहन ज़रा सब्र तो कर ले प्लीज। 856 266 5786। ये मेरा ज़ाती नंबर है, सेल नंबर है। आप इस पर कॉल कर लें, या यही नंबर जिस पर अभी आपने कॉल की है, जब प्रोग्राम ना हो रहा हो, 7186756987। तो यहाँ के जो अलमहदी सेंटर मस्जिद के मुतवल्ली हैं सैयद सजाद अली, आगा सैयद सजाद अली शाह जाफरी, उनसे बात करके मेरे बारे में पूछ सकती हैं। बहुत शुक्रिया बहन, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कैलगरी से बात कर रही हूँ, तो मैं टाइम का 2 घंटे का फर्क है, तो मैं अभी आपका प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको इंशाअल्लाह कॉल कर लें। खुदा हाफिज़। कोई भी बहन भाई सवाल करना चाहें, ज़रूरी नहीं कि आप पब्लिकली अपना नाम बताएं, नाम के बगैर भी सवाल कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो मेरे ज़ाती नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बहन, आपने हमें कॉल की। अरफा के दिन के जो अमाल हैं वो बहुत तवील अमाल हैं। इसमें 100 मरतबा अल्लाह अकबर कहना है, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा सुबहानल्लाह, 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 100 मरतबा सूरह इखलास, 100 मरतबा इन्ना अंज़लना, 100 मरतबा आयतुल कुर्सी, 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, 100 मरतबा दुरूद। और सहीफ़ा कामिला की दुआ को पढ़ना है, और दुआए रोज़े अरफा को पढ़ना है। इसी तरीके से जो गदीर के दिन के आमाल हैं, अगरचे इंशाअल्लाह और डिटेल से हम अलग अलग भी बयान करेंगे, ये भी बहुत अहम आमाल हैं। गदीर के दिन 18 ज़िलहज को मुआनका करना है। मोमिनीन के गले लगे, मोमिनात के गले लगे, और ये जुमला कहें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वल अइम्मतित तय्यबीन अलैहिमुस्सलाम। 18 ज़िलहज के सदक़े का बड़ा सवाब है। 1 दिरहम अगर सदका दे तो 1000 के बराबर है। और इसी तरीके से 2 रकत नमाज क़ब्ल ज़वाल है। हर रकत में सूरतुल हम्द के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास, 10 मरतबा सूरह अल-क़द्र, 10 मरतबा आयतुल कुर्सी। ये ज़वाल से पहले के आमाल है। इस दिन के रोज़े का भी बड़ा सवाब है।
अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो हमारे नंबर पर कॉल कर लें 718-675-6987। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, ये सूरतुल क़द्र, सूरतुल इखलास, आयतुल कुर्सी 10 मरतबा पढ़ने वाली 2 रकतों का जिक्र था जो गदीर के दिन पढ़नी है, और दुआएं भी हैं, सजदे में जाके पढ़ने की दुआ भी है। और यही आमाल इत्तिफाकन मुबाहला के दिन भी है जो कि सच्चों की ईद है, झूठों के खिलाफ। और सीग़ा उख़ुव्वत जो पढ़ा जाता है, आख़ैतु का फ़िल्लाह व साफ़ैतु का फ़िल्लाह व साफ़हतु का फ़िल्लाह व आहदतुल्लाह व मलाइकतहु व कुतुबहु व रुसुलहु व अंबियाहु वल अइम्मतल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम इला आखिर। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद अली राशा काज़मी, राचेस्टर अपस्टेट न्यूयॉर्क से आपको पुराना कलर। जी जनाब। और इस वक्त मैं प्रोग्राम आप लोगों को देख रहा हूँ और माशाल्लाह आपने अमाल के मुतालिक वो जो सारी चीज़ें बताई हैं, तो साहब ऐसा मुमकिन है कि ये सारी चीज़ें अगर आप थोड़ा सा डाउनलोड कर दें उसके ऊपर यूट्यूब पे, तो फिर आसानी हो जाएगी हमें वो अमाल। जी इंशाअल्लाह शाह साहब, हाँ जी, ऐसे करेंगे कि इन आमाल को तो अभी यूट्यूब पे इंशाल्लाह आज ही ये हुसैन रज़ा भेज देंगे, और कल से आमाल ज़िलहज टाइप करेंगे तो यूट्यूब पे ये सारे आमाल आ जाएंगे, और टीवी में इंशाल्लाह इसको रिपीट भी कर दिया जाएगा, बल्कि इसको कोशिश करेंगे कि डेली रिपीट कर दें। और आमाल अरफा जैसे पहले ऐलान कर चुका हूँ, आप तमाम हजरात व ख़वातीन को बता दें, बल्कि आप ईमेल भी जारी कर दें, बल्कि अल-महदी टीवी वाले भी ईमेल जारी कर दें, टिकर भी चला दें कि आमाल इंशाअल्लाह ठीक 12 बजे से यहाँ शुरू होंगे और अल्लाह के हुक्म से 5 बजे तक जारी रहेंगे। सिर्फ आधा घंटा बीच में नमाज का वक्फा होगा, बाकी पूरी ट्रांसमिशन इंशाअल्लाह जारी हो सारी रहेंगी। नमाज भी पढ़ाई जाएगी बाकायदा, और उस नमाज को बाकायदा रिले किया जाएगा। जो हजरात व ख़वातीन घरों में बैठे हैं वो टीवी से फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने रमज़ान के अमाल को भी माशाअल्लाह फॉलो किया था। अमाल अरफा भी कराए जाएंगे, फिर अमाल गदीर भी इंशाअल्लाह कराए जाएंगे। हमारे जनाब अल्लामा इमरान बुखारी साहब अल कुरान सेंटर में अमाल कराएंगे, और मैं इंशाअल्लाह अल महदी सेंटर में अमाल कराऊंगा। शेख फाजिल सैलानी साहब भी अल खोई में, और दीगर जितने भी उलमा हमारे भाई हैं वो सब अपनी अपनी जगह अमाल कराएंगे। बहुत शुक्रिया अली रज़ा शाह साहब काज़मी, आपने हमें कॉल की। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं? जी दुआ है जनाब, हाँ फरमाएं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कैलगरी से। जी। हज़रत आपसे एक सवाल ये है कि जो लोग हज पे नहीं जाते तो उनके लिए मतलब कि कुर्बानी की क्या क्या मसला है, कुर्बानी करनी चाहिए, ये प्लीज बता दें, बड़ी नवाजिश। बहुत शुक्रिया, आसिफ साहब ने हमें कॉल की है कैलगरी से, और मैं गुजारिश करूंगा कि वॉच करते रहें। मैं अभी अर्ज करता हूं, आसिफ साहब का सवाल ये है कि जो लोग हज पे नहीं जा सकते उनके लिए कुर्बानी का क्या हुक्म है। तो शरी मसला समझ लीजिए, जो लोग हज पे जाएं उनके लिए तो कुर्बानी वाजिब है, जो लोग हज पे न जाएं उनके लिए कुर्बानी सुन्नत है। और अभी हमजा ने सवाल किया था, यह कुर्बानी इसलिए भी सुन्नत इब्राहिमी शुमार हुई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब में देखा कि अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं, जिसका जिक्र सूरह साफ़ात में डिटेल से है। बेटे से राय पूछी, बेटे ने फरमाया कि आप अपने रब का अम्र जो मिला है कर गुजरिए, आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। गोया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बानगाह में लिटा दिया और छुरी चला दी, समझा कि बेटा ज़बह हो गया। जब आंखों से पट्टी खोली तो देखा कि एक दुम्बा ज़बह हो चुका है जो अल्लाह ने जन्नत से भेजा था, और बेटा सही व सालिम है। तो इस तासी में हम क़यामत तक 10 ज़िलहज को कुर्बानी करते हैं, चाश्त के वक्त ईद की नमाज के साथ ही मुकारिन, ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल हो। अमेरिका में, कनाडा में
जो हलाल मीट्स की दुकानें हैं उन पे ये एहतमाम है, या आप अपने अजीज़ों को भेज दें पाकिस्तान इंडिया में, वो वहाँ पर कुर्बानी करें और गरीबों फ़कीरों मिस्कीनों को भी गोश्त तकसीम कर दिया जाए। मेरी एक बहन ने जो पेंसिल्वेनिया से ताल्लुक़ रखती हैं, न मालूम वो राज़ी हो या ना हो, उन्होंने एक कुर्बानी हमारे यतीम खाने के लिए भेजी है, और एक और बहन ने आज ही फ्लोरिडा से हमारे यतीम खाने के बच्चों के लिए कुर्बानी भेजी है, और एक कुर्बानी मैंने खुद भेजी है। 3 कुर्बानियाँ हमने भी भेजी हैं यतीमों के लिए। अगर आप हजरात व ख़वातीन में से कोई भी हमारे यतीम बच्चों के लिए जो लाहौर, कराची, भक्कर, खुशाब वग़ैरह में मौजूद हैं भेजना चाहें तो आप हमसे राबिता फरमा सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन और हज़रात, ये दुम्बा जो जन्नत से आया था, इसी दुम्बे की तासी में बेऐब कुर्बानी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पेश की जाती है। जो हज पे जाते हैं वो मजज़र में, कुर्बानगाह में, और जो नहीं जाते वो अपने अपने इलाके में कुर्बानी करते हैं। रोज़े अरफ़े के आमाल जैसे मैंने अर्ज़ किया है इंशाअल्लाह हम खुद करवाएंगे। आप हज़रात व ख़वातीन चाहें तो हमारे साथ सैटरडे के दिन इंशाअल्लाह आमाल बजा ला सकते हैं। ये आमाल ज़ोहर से पहले 12 बजे ठीक इंशाअल्लाह शुरू हो जाएंगे। अगरचे ज़िलहज के आमाल इससे भी ज़्यादा है, मगर मैं आज की हद तक इख्तिसार को मलहूज़ खातिर रखते हुए यहीं पर इक्तफ़ा करता हूँ। इंशाअल्लाह आप हज़रात व ख़वातीन 12 बजे सैटरडे के दिन लॉग इन हो जाएं ताकि आप हमारे साथ आमाल कर सकें। इसी आज के प्रोग्राम को इंशाअल्लाह कल रिपीट किया जाएगा दिन में 2 बजे, आप मुलाज़ा फरमा सकते हैं। रात को फिर रिपीट करेंगे ताकि ज़िलहज के जो आमाल और वज़ाइफ हैं वो हमारे भाई बहनों तक पहुंच सके। एक चीज़ और अर्ज़ कर दूं जो थोड़ा सा वक्त बाकी है, रोज़े अरफा के बारे में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई इमाम हुसैन की ज़ियारत अरफा के दिन करेगा तो उसे 1000 हज 1000 उम्रा का सवाब मिलेगा, और उसे इतना सवाब मिलेगा जैसे उसने 1000 जंग की हो हुजूर के साथ मिलकर कुफ़ार व मुशरिकीन के खिलाफ। 1000 उहद लड़ी हो, 1000 बदर लड़ी हो, 1000 खंदक लड़ी हो, 1000 हुनैन लड़ी हो, 1000 खैबर लड़ी हो। दूसरी रिवायत में देखा है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला की ज़ियारत का सवाब अरफा के दिन 1,00,000 हज के बराबर है। जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ किया गया हो, 1,00,000 हज जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पाबे रकाब होकर इंसान ने किया, और 1,00,000 उम्रे के बराबर है जो रसूल के साथ मिलकर किया। इस दिन की ज़ियारत 1,00,000 गुलाम आज़ाद करने के बराबर है, 1,00,000 घोड़ा जिहाद में भेजने के बराबर है। तो इस दिन की ज़ियारत को तर्क न करें। अगरचे अजर व सवाब ज़्यादा ये है कि क़ब्र इमाम हुसैन पे इंसान जाए, मगर जो लोग हम जैसे रूसिया जो मैदान अरफात में भी नहीं जा सके और इमाम हुसैन के पास भी नहीं जा सके, तो कम से कम अरफा के दिन को 5-7 घंटे 8 घंटे बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इबादत में गुजारें और इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ें ताकि अल्लाह 1-1 लाख का सवाब इनायत फरमाए। हत्ता कि मैंने एक रिवायत ये भी देखी है कि सबसे पहले अल्लाह अरफा के दिन ज़ाहिर हुसैन को देखता है और फिर मैदान अरफात के हाजी पर नज़र करता है। तो गोया इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ने वाले पर पहले नज़र पड़ती है। कुछ मेरे भाई बहन बशमूल मेरे जो इस साल हज पे मुशर्रफ नहीं हो सके, सऊदी एम्बेसी की
कोताही की वजह से, सऊदी शहजादों की गलत पॉलिसियों की वजह से, ब्लैक में बिकने वाले हज वीज़ा की वजह से वो दिल बर्दाश्ता ना हो। हुजूर को भी हज से रोका गया था, ख़ानदान यजीद ने रोका, इमाम हुसैन को भी हज से रोका गया। और कुछ तो हमारे इमाम वो हैं जो हज कर ही नहीं सके, मगर आपके लिए सब्स्टिट्यूट है, और वो अरफा के दिन के अमाल हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, ईद क़ुरबान, बड़ी ईद, ईद उज़ ज़ुहा, 2 रकअत नमाज ईद है, इसको बड़ी ईद कहा जाता है। तकबीर कह के घर से निकले, तकबीर कहते हुए घर वापस आए, ईद ज़रूर पढ़े। ऑलमोस्ट 7 से 9 बजे तक नॉर्थ अमेरिका में ईद पढ़ाई जाएगी। जहाँ जहाँ आप करीब रहते हैं आप ज़रूर ईद पढ़ें, क्योंकि ईद पढ़ने का बड़ा सवाब है। ज़माने हज़रत हुज्जत में तो ईद वाजिब होगी, अब इस वक्त सुन्नत है। कुर्बानी ज़रूर करें, उसमें अपने आइज़ा अक़रबा का हिस्सा, गरीबों का हिस्सा ज़रूर निकालें और यतीमों मिस्कीनों को याद करें। वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तर अस्समावाति वल अर्द हनीफ़न मुस्लिमन वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका व लका बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, ये कह के 1000 मरतबा ईद क़ुरबान के दिन दुरूद भेजे, इसका बड़ा अजर व सवाब है। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, एक तावीज़ भी है गदीर के दिन का, ज़िलहज के महीने में, जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत के ऐलान का दिन है। हुजूर ने यह तावीज़ बनाया था। यह तावीज़ मैंने मुख्तसर सा है, सफ़ा नंबर 720 तोहफ़ा दरवेश में लिखा है। अगर वो हासिल करना चाहें तो आप हमें ख़त लिख दें, जवाबी लिफाफे के साथ आपकी खिदमत में हम इंशाअल्लाह वो तावीज़ हुजूर पेश कर देंगे। मुबाला के दिन 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार की भी रिवायत वारिद हुई है, और जो अहम डेट्स हैं उनको हम आपकी खिदमत में पहले बयान कर चुके हैं। याद रखिए, सूरह दहर भी इसी महीने में नाजिल हुआ। बाज़ ने आखिर ज़िलहज का, बाज़ ने 25 की रात कहा है कि जिस रात में युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा की आयत और पूरा सूरा नाजिल हुआ था। आखिर ज़िलहज में 2 रकअत नमाज है, हर रकअत में सूरह फातिहा, सूरह तौहीद, सूरह तौहीद के साथ आयतुल कुर्सी 10-10 मरतबा, 1 मरतबा फातिहा, 10 मरतबा तौहीद, 10 मरतबा आयतुल कुर्सी, और मुतअद्दिद और आमाल वज़ाइफ कुतुब अदइया में दर्ज हैं। हमने इख्तिसार का ख्याल रखते हुए आज की हद तक आपकी खिदमत में कुछ डेट्स अर्ज़ कर दी हैं, कुछ तारीख़ें बता दी हैं, कुछ अहमियत अर्ज़ कर दी है। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, दोबारा अर्ज़ करूँगा। चंद मिनट बाकी है, अगर आप सवाल करना चाहें एक आध कॉल हम ले सकते हैं। 718-675-6987 पे आप हमें कॉल करके ज़िलहज के आमाल पूछ सकते हैं। पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ज़िलहज की जो अहम डेट्स हैं, तारीख़ें, बाज़ रिवायतों में मैंने ये भी देखा है कि 10 ज़िलहज को हज़रत मूसा तौरात लेकर आए थे, ये भी मैंने रिवायत देखी है। जो 10 शहादतें हज़रत जिब्रील, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए लाए थे, वो भी अरफा के दिन पहले 10 दिनों में अगर आप पढ़ सकें, बाज़ ने 100 मरतबा भी लिखा है, उसकी ताकीद वारिद हुई है। कुतुब अदइया में देखें, ये जो ख़ास
ओकेजन्स होते हैं, डेट्स होती हैं, इनमें अल्लाह ताला दुआओं को भी कबूल फरमाता है। मुझे एंड में एक बात अर्ज़ करके आपसे इजाज़त ले लेनी है कि बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है माँ बाप की कि औलादें हमारा कहा नहीं मान रही, औलादें कंप्यूटर से हट नहीं रही, औलादें हर वक्त फ़ोन पे लगी हैं, स्क्रीन सिकनेस हो गई है, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, मस्जिद नहीं जाते। उन बच्चों को कोशिश करें उलमा के करीब करें, उलमा से वो दर्स हासिल करें और अपने घरों के माहौल में भी पाकीज़गी लाएं। ड्रामों की बजाय ऐसे टीवी चैनल देखें जिनमें हिदायत की बातें हों, तो इंशाअल्लाह औलादें बचेंगी। एक और शिकायत जो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा आ रही है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे इस्लाम छोड़ रहे हैं, मुर्तद हो रहे हैं। इस सिलसिले में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोशिश होगी कि कल रात को बरकात इसमें आज़म में ऐसी दुआएं बताई जाएं, ऐसे वजीफ़े बताए जाएं कि जिससे मुर्तद होने वाले बच्चे वापस आ जाएं, दीन छोड़ने वाले बच्चे वापस आ जाएं। मियाँ दीन छोड़ गया है, मियाँ भाग गया है, बीवी गायब हो गई है, बेटी गायब हो गई है, बेटा गायब हो गया है, रिश्तेदार चला गया है, टेलीफोन नंबर बदलवा लिए हैं। इन तमाम के लिए मैंने कुछ मुरक्कब दुआएं, वज़ाइफ डिस्कवर किए हैं। इंशाअल्लाह वो मैं आपकी खिदमत में बशर्ते ज़िंदगी कल 8 बजे अर्ज़ करूँगा। अगर मैं कल किसी वजह से आपकी खिदमत में हाज़री ना दे सकूँ तो फिर बशर्ते ज़िंदगी जुमेरात को ज़रा अर्ली और जुमा को भी ज़रा अर्ली आपकी खिदमत में हाज़री हो जाएगी, ताकि कोशिश करूँगा कि कल 8 बजे बरकात इसमें आज़म में वो आमाल वज़ाइफ बताऊँ कि जिससे बहकती ही औलादें वापस आ जाएं। बहुत शुक्रिया जिन हज़रात व ख़वातीन ने आज कॉल्स की। सिरात मुस्तकीम के 33वें प्रोग्राम में जो ज़िलहज के बारे में है, अगरचे ज़िलहज का असल लुत्फ़ तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक में है, मगर जो हज़रात व ख़वातीन नहीं जा सके वो यहाँ पर भी इस मुबारक महीने की इबादतें करें, रियाज़तें करें, कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, सदका दें, खैरात दें, तौबा करें, रोज़े रखें, अरफा के अमाल करें, पहली 10 रातों के अमाल करें, ईद उल ज़ुहा में हाज़री दें, ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ें, 2 रकत नमाज डेली पढ़ें जो पहली 10 रातों में है, मगरिब और इशा के दरमियान नमाज अमीरुल मोमिनीन, नमाज फ़ातिमतुज़ ज़हरा 50 सूरह इखलास वाली 4 रकत वो पढ़ें और इसी तरीक़े से गदीर मुबाला के अमाल करें। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो और अल्लाह ज़िलहज के महीने के सदक़े में हमारे साबिक़ा गुनाहों को माफ़ फरमाए और जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ अदा फरमाए, जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ ख़त्म फरमाए, जो बेगुनाह कैद हैं उनकी कैदें आज़ाद फरमाए और जो औलाद की बाबत परेशान हैं उनकी परेशानी ख़त्म हो, जो बीवियाँ शौहरों की वजह से परेशान हैं उनके शौहरों को अल्लाह हिदायत करे, जो शौहर बीवियों की वजह से परेशान हैं अल्लाह उनकी बीवियों को हिदायत फरमाए, जो औलादें अपने माँ बाप की वजह से परेशान हैं अल्लाह ताला उन औलादों के माँ बाप की हिदायत फरमाए। अल्लाह ताला आपके हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, हम सब का ख़ातिमा अलल खैर हो। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल 8 बजे आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तक़ब्बलल्लाहु अअमालकुम फ़ी शहर ज़िलहज।